वेलकम गाइस, दिस इज असद इकबाल। आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और हमारे साथ हैं यहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनसे आज हम बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से उन्होंने इटालियन वीज़ा हासिल किया, यहाँ पे तालीम हासिल की, उस बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादातर कैमरा जो होगा आज इनकी तरफ होगा। इनका नाम है आमना और आज आमना हमारे साथ बात करेंगी और अपनी सारे आपके जो सवालात आपके जहन में वो सब मैंने नोट डाउन कर लिए। मैं वो सवालात करूँगा आमना से और उनके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं आमना से। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। सो आमना है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है जैसे मैंने आपको बताया। और आमना प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। I'm from Islamabad. Okay. I've done my bachelor's in industrial design from NUST. ओके, I've got 2-3 years working experience. बैक देयर इन पाकिस्तान? Yes, in Pakistan. Okay. And then I started looking up for my masters abroad because I wanted to do it. Mhm. And now I'm here. I came back in 2021 Okay. to Italy in Rome. सही है। I'm doing my masters in product and service design from Sapienza University. ज़बरदस्त। Right now. So Amna, how was your experience in finding your slot at master's program here in Italy? Was it difficult? Because people often ask के भाई यहाँ पे आपका रेशो क्या है, वीज़ा लग जाता है नहीं लगता? What your opinion? What is your opinion? How to get Italian visa in the simplest way? कि वो क्या चीज़ें करें तो उनके Italian visa उनको लग जाए, उनको प्रॉब्लम ना हो? I think for the visa, you just need to build a very strong and like a very genuine case. Okay. I think obviously we know that bank statement हर visa के लिए is very important. ठीक है। Same goes for Italy also. ठीक है। I had a good bank statement और usually आपके numbers आते हैं तो भी आपका काम बेहतर चल जाता है। तो उस केस में आपका बैंक स्टेटमेंट बेशक बहुत ज़्यादा ना भी हो, that works, but usually you need to have a really strong bank statement. Next is obviously your academics. If you have a good GPA अपने universities में तो फिर definitely you're going to have an edge again. तो आपकी क्या, I'm sorry मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी क्या GPA थी? I had do I want to tell that? Yeah, it's okay, no It was problem. 3.3 Which is not bad. Yeah, but I think people with engineering universities में 3.5, but then that's their requirement also. ठीक है। हमारा जो merit था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह I was second on merit. ठीक है। So I think yeah, it varies field to field. I'm in design. यहाँ पे engineering की भी बहुत सारी fields हैं, CS के लोग हैं. You have a lot of options here, especially Sapienza University of Rome. Okay. यहाँ पे जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, इट्स अ लिटिल पर्सनल क्वेश्चन, तो आप मुझे बताएं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या रफली एक अमाउंट, अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना चाह रही हैं, एक रफली एक अमाउंट बता दें कि कितना बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट में मौजूद था? My bank statement I would say was excessively थोड़ा सा ज़्यादा थी. It was around 4 million. Okay. It's not a very usual case, but हमारा उस वक्त थोड़े से फाइनेंशियल इसी तरह से चल रहे थे कि I had a very strong bank statement. एंड आपने कितने अरसे के लिए बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की थी अपनी? Again, you need to build up a very good case. That doesn't really matter. My father's account हम use कर रहे थे obviously. उसके अंदर the money got transferred like 2-3 weeks ago. Okay. But the point is that you just need to build your case. We built up a case that we just recently sold our car, and we also got some of the other funds from other part. Okay, so no इस problem. तरह की चीज़ों से आपका just आपने अपना केस स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना होता है to give them valid reasons for why you've done what have you done with your bank. आप मुझे ये बता सकती हैं आमना, अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, who are willing to come here और यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, वो बोलते हैं आइल्स ज़रूरी नहीं है। अगर हम ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर ले लें, सर्टिफिकेशन ले लें उसकी यूनिवर्सिटी से, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं, शुड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कम अलॉन्ग विद द आइल्स करके आएँ या नहीं करके आएँ, आपको क्या लगता है? I think IELTS will definitely give you a benefit. यहाँ पे edge मिलता है आपको उसका. Okay. Not only while you're applying the visa, also while you're here in Italy and you're applying for different opportunities आगे पीछे. ठीक है. So again, I had my IELTS, मैंने यहाँ पे Erasmus में भी apply किया था, so that sort of gave me an edge. Also very important, I think that while you're applying for the visa, IELTS आपको बहुत edge देता है while you're applying for Italian visa. ठीक है. अगर ये Erasmus क्या है?
काफ़ी लोग जो I think- पाकिस्तान से okay. आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको नहीं आइडिया कि एरास्मस क्या होता है। थोड़ा सा एरास्मस के बारे में भी बताएं, व्हाट इज़ एरास्मस? So Erasmus Plus is so यहाँ पे दो programs हैं. So there's Erasmus Plus and then there's Erasmus Mobility. ओके, Erasmus Mobility allows you to move for a semester to another country for that particular semester. The condition is that you have to come back to your home university, which फ्रॉम is योर स्टेशन कंट्री, Exactly. यहाँ पे आप जहाँ पे स्टेशन है, Exactly. ठीक है। On the other hand, Erasmus Plus is ये हमें opportunity मिलती है, we can travel across Europe fully funded. फुली फंडेड, यानी कि आपको अपने पैसे कुछ नहीं लगाने, और एक एरास्मस डिफरेंट एनजीओज जो हैं वो करा रही होती हैं वो प्रोग्राम, Exactly. और वो आपको बाहर लेकर जाती हैं, आपको एक्सपोजर देती हैं। वहाँ पे आप डिफरेंट स्टूडेंट से भी मिल सकते हैं Definitely, जो yes. डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट रीजन से आए हुए Yes, होते हैं। yes. आपका एरास्मस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? It was amazing. I have been to Erasmus 2 times and it's an amazing multicultural experience. कहाँ गई थी आप? I went to, actually it's funny, I went to Kosovo. It's a Muslim country in Europe. या So a lot of people tell me कि oh Kosovo कौन जाता है, but the thing is that आप Kosovo कभी भी नहीं जाओगे unless आपको इस तरह की fully funded opportunity Exactly, ना मिले. exactly. It's a very good experience. और I इसके can अलावा recommend. कोसोवो के अलावा कहाँ गई थी आप? I went to Sardinia. This is also part of Italy. सार्डिनिया, ओके। Yes, yes, yes. Okay. So that was again a wonderful experience. Let's talk Fully about funded. let's talk about the scholarships right now. Yeah. कि भाई what did you do to secure yourself कि आप यहाँ से आपका फाइनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपको पाकिस्तान से पैसे ना मंगवाने पड़े और आप जो है आराम से अपना स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट स्कॉलरशिप वाला चीज़ जो है? Okay, one thing that I really want to tell all students who are wishing to come to Italy is that you just please learn the language before you come here. Okay. बहुत opportunities हैं but language is a huge barrier. अगर वो आपका नहीं होगा, you know a good A1, A2 level की Italian आपको आती होगी, आपके लिए बहुत easy हो जाएगा. So I think अल्हम्दुलिल्लाह scholarship हमें amount इतनी मिलती है that we are able to manage initially with our own funds. जो हम घर से लेके आ रहे होते हैं. आप कितने पैसे लेकर आई थी? I honestly brought 4 lakhs. 4 lakh rupees. Yeah, and That is around 1700. No, not even 17. Around 900 euros for now. Yeah, for तकरीबन. now, yes. I think जब back when I came, I brought if euros में बात करें, I brought 2,000 euros exact. 2000 euros, okay. And मेरा I think month में भी like 200 भी नहीं खर्च होता जब आप even like आप properly अगर यहाँ पे groceries करो, आगे पीछे करो, if accommodation आपको मिल जाती है, आपका इतना खर्चा नहीं होता. So आपका scholarship से ही funding हो जाती है, but definitely if you're working आगे पीछे आप कोई opportunity यहाँ पे मिल जाती है काम करने की, तो वो आपकी और हेल्प हो जाती है. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इटालियन स्पीकर्स के लिए हैं, या अगर आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेहतर है तो आपको फिर भी जॉब्स लग सकती हैं? नहीं, definitely with good English you also again have an edge, but that is for some jobs. हाँ. But mostly ये मसला आ जाता है even जब हम एक उस पे अप्लाई कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशनल उसके लिए, if that especially within Italy, वो मसला करती है. So I would suggest to just know the language. Also यहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगता आप क्यों इटालियन के बगैर आ रहे हैं. सही बात है, मतलब आपको एक लैंग्वेज अगर आप कर लेंगे, Exactly. ऊनो आदुए कर लेंगे तो वो आपके Exactly. लिए ही बेनिफिशियल है आपके लिए. And you'll be able To communicate. interact, Exactly, to communicate with the Yes. people. आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? Where do you see yourself after completing your master's degree? आप यहीं पे रहेंगी या प्रॉब्ली कहीं और प्लान करेंगी? I just for now I am planning to get an internship preferably in Italy because I am studying here. But obviously I plan to find a job anywhere in Europe, especially if it's an English speaking job तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपकी growth में मसला नहीं होता. ठीक है. उसके अलावा no plans to go back home. ओके, तो अभी आपकी डिग्री ख़त्म होने में कितना टाइम है? It's just another 6 months. लेकिन यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्कॉलरशिप की वजह से एज है, थोड़ा सा रिलैक्स भी है कि we can give exams as per our convenience. जब हम ready हैं, we have 3 takes for each exam, so we can give exam whenever it's suitable for us. And अभी मेरा thesis semester start होने वाला है, and it's up to me. I can take about extra 6-7 months to complete my thesis along with the 4 months जो मेरे पास semester के हैं. आमना, बात तो हो गई हमारी स्कॉलरशिप्स की, आपने बता दिया, ठीक है. मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है और आपके एक्सपेंसेस कितना है?
आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं महीने में कितने पैसे आपके खर्च होते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड ईट पास्ता एवरी डे, सो डेफिनेटली यू वुड बी गोइंग टू द पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स और वहाँ पे आप अपनी ग्रोसरी करते होगी. क्या एक्सपेंसेस पड़ते हैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को यहाँ पे? हम कल ही ग्रोसरी करके हैं, तो आई वाज कैलकुलेटिंग आपका अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से खुले तरीके से खर्च करें, इट्स गोइंग टेक अबाउट 50-60 euros एंड यू विल गेट लाइक अ मंथ्स ग्रोसरी व्हिच इज सफिशिएंट. Okay. सो आपका ग्रोसरी स्पेशली इज जस्ट 50-60 euros फॉर अ मंथ. एंड उसके अलावा अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं इन केस. एकोमोडेशन पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाह रहा हूँ. द फर्स्ट डे जब आप आई थी यहाँ पे तो क्या कैसा था यहाँ पे? आपने कोई हॉस्टल बुक किया हुआ था या कोई होटल बुक था आपका, या आप किसी रिलेटिव के पास आई थी? मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. आई एक्चुअली केम टू माय फैमिली फ्रेंड, हमारे निकल आए थे तो मैं उनके पास गई थी. यहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अपने लोकेशन, अपनी सबसे पहले अपनी लोकेशन देखनी है फ्रॉम योर कैंपस टू द लोकेशन दैट योर अकोमोडेशन इज़ इन. आप मेट्रो देख लो, ट्रेन्स देख लो, बसेस एक्सेस देख लो, उस हिसाब से. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अच्छा स्पॉट पे मुझे मिल गया था और फैमिली फ्रेंड्स वहाँ रह रहे थे तो आई स्टेड विद देम. Okay. बट ऑब्वियसली मेरे साथ जो और लोग आए थे दे फाउंड अकोमोडेशंस आगे पीछे. यहाँ पे इटालियंस रेंट करते हैं, ऑल्सो अपने पाकिस्तानी लोग भी रेंट करते हैं, रूम्स अपार्टमेंट्स रेंट करते हैं. वो आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है. एक नॉर्मल शेयर्ड अपार्टमेंट आपको क्या लगता है क्या कॉस्ट करता है? एक सिंगल, अगर फॉर एग्जांपल इफ लेडी इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, उसको घर एक रूम भी उसको मिल जाएगा विद द शेयर्ड किचन व्हाटएवर. मिनिमम अच्छा डिसेंट घर कितने में कॉस्ट करता है यहाँ पे शेयरिंग पे? इफ मिनिमम हम कहें और अच्छा हम बात करें उसकी तो इट्स गोइंग टू बी अराउंड 250 to 300 euros. Okay. That is a reasonable accommodation that you get here. Above this आपको आराम से मिल जाती है 400 euros में you'll get like a very nice apartment. अपना वो शेयर्ड होता है? वो भी शेयर्ड होता है, ठीक है. बट यानी कि अगर हम बात करें 400 euros की तो डेफिनेटली इट्स क्लोज टू द मेट्रोज, बस एक्सेस काफ़ी ईजी है, तो वो 400 euro के अंदर तो बहुत अच्छा जगह मिल जाती है. लेकिन अगर थोड़ा सा पैसे बचाने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए तो वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 200-250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अब इनिशियली जब आप आते हो यू नीड टू सेव मनी, तो इन दैट केस दिस इज द ऑप्शन. यू लुक फॉर 250 to 300 के दरमियान की अकोमोडेशन. ठीक है. और ये हम घर कहाँ ढूंढ सकते हैं? So we have a lot of Facebook groups. हमारे अपना we have like association PSA Rome. Okay. जिसमें they help students with any accommodation that is available. Students can post in the Facebook group or in the WhatsApp group that we have. और वहाँ पे यूजली स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं उनकी जो भी उनको चाहिए होता है, जो भी उनका बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग whoever has a contact उनको मिल जाता है. यानी कि फेसबुक ग्रुप जो है PSA का वो काफ़ी है, उसका लिंक भी हम लोग इस वीडियो के अंदर अटैच कर देंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो. More active is the WhatsApp group. So अच्छा, if WhatsApp somebody group. is looking for that, I would recommend the WhatsApp group. तो WhatsApp ग्रुप भी इसके अंदर मेंशन कर देंगे हम. Yes. ठीक हो गया. तो अभी आप मुझे ये बताएं कि यानी कि आपने बताया कि ग्रोसरी जो है वो 50 euro 60 euro टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. अगर मेरे जैसा बंदा है जो कि खाना थोड़ा ज़्यादा खाता है तो उसको कॉस्ट करेगा तकरीबन 100 euro. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट घर का हो गया 250 euro अगर वो रह रहा है. लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो हॉस्टल में रहना चाह रहा है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं, जो रीजन की तरफ से हॉस्टल्स मिलते हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? सो इफ़ आप अपनी यूनिवर्सिटी हॉस्टल रेजिडेंस में रह रहे हैं तो वो आपकी अमाउंट आपकी स्कॉलरशिप से डिडक्ट हो जाती है. सो इट्स समथिंग दैट इज द मनी दैट्स नेवर केम टू यू. वो मसला नहीं है. तो फिर आपकी जो कॉस्ट है उसमें आपके बिल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं होता. इसकी चार्जेस क्या होते हैं? कुछ आइडिया एक रफली एक साल के या एक महीने के क्या चार्जेस होते हैं एक हॉस्टल के? आई वुड गिव अ रफ एस्टिमेट अबाउट 1200 to 1500 euros फॉर अ ईयर. या फॉर अ ईयर. ओके, दैट्स अराउंड डिडक्टेड फ्रॉम आवर स्कॉलरशिप 140-150 euros तकरीबन. या तकरीबन. यस. ठीक एंड हो गया. ऑब्वियसली दिस इज एन आइडियल केस कि आपको यहाँ से जब आपने स्कॉलरशिप अवेल कर लिया यू गोइंग टू गेट द रेजिडेंशिया मे बी इन द फर्स्ट ईयर और इन द सेकंड ईयर. आपको हॉस्टल से रेजिडेंसा मिल जाता है? सॉरी, हॉस्टल से रेजिडेंसा मिल जाता है? काता दी आइडेंटिटी बन जाता है आपको हॉस्टल से? नहीं बनता. नहीं, इसके ऊपर नहीं बनता. यू नीड टू हैव लाइक अ सेपरेट होम. अच्छा, स्टूडेंट सबसे पहले पाकिस्तान आ रहे हैं,
उनको अपना घर का जो इशू है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, Definitely, yes, और very इसके अलावा उनको यानी कि जो मेजर खाने के स्नैक्स होते हैं वो भी रख के लेकर आने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। You कुछ will बेसिक miss Lays. या लेस ले आएँ, और अपना जो मैगी होता है वो जो होता है वो सारी चीज़ें ले आएँ, क्योंकि इनिशियली आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता ऐसे है। मिनिमम पैसे कितने रख के लेकर आएँ जिसमें उनके तकरीबन परेशानी ना हो किसी भी किस्म की, कितने पैसे होने चाहिए? I think 2,000 euros worked for me. Okay. बहुत अच्छे से काम किए थे. If आपने यहाँ के अपने especially you don't need to go shopping for your clothes. Exactly. 2,000 euros. शुरू में आते ही तो शॉपिंग नहीं करेंगे। Exactly. नहीं, I did that. अच्छा, you did that. But 2,000 euros is a good amount to bring for I think 3 months, 4 months. ओके इसके अलावा मुझे ये बता दें आमना कि सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, मैं बेसिकली क्योंकि इतना कंसर्न इस वजह से हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आर ब्लैंक, Yes. वो आ जाते हैं, उनके पास रिहाइश भी नहीं होती, फिर वो हमारा एक पाकिस्तानी सोल ब्रदर्स का ग्रुप है, Okay. उसके अंदर पोस्ट करते हैं कि यार मेरे पास तो घर ही नहीं हुआ, एडमिशन हो गया, मैं कल की फ़्लाइट है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि आप जो है अपनी रेजिडेंसी पहले फिक्स कर लें, एंड व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो एक बुकलेट मिलती है जो आपको पोस्टा से लेनी होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? Okay, that is the most important part. वो आपकी, हम इसको किट बोलते हैं. एग्जैक्टली, basically. किट वो हमें चाहिए होती है टू अप्लाई फॉर परमिट कार्ड है, विच सही इज है। कॉल्ड परमेसो दी सोजोर्नो. ठीक है। वो कहाँ से मिलती है परमिसो दी सोजोर्नो? वो हमें मिलेगा फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन दैट इज गोइंग टू बी असाइन्ड. उसको क्या कहते हैं इटालियन में? कस्तूरा। कस्तूरा, yes. Okay. I forgot. ओके Okay, आपने आते साथ किट सबमिट करानी होती है. ऑलवेज सीनियर्स आर हियर टू हेल्प यू. यू फिल दैट किट प्रॉपर्ली. उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ अटैच करने होते हैं, यूजुअली द पासपोर्ट, आपका जो आपने अपॉइंटमेंट लेटर मिला, आपको ऑफर लेटर मिला यूनिवर्सिटी से, वो अटैच करना है. एंड ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स, एंड यू सबमिट दैट विद अ फी दैट इज अराउंड आई थिंक 110 euros. ओके यू सबमिट दैट एंड देन यू गेट बायोमेट्रिक्स की डेट मिलती है आपको. आपने जाके फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इट इज़ यूजली आफ्टर 4-5 months आपने देना होता है, बिकॉज फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आपका वीज़ा वैलिड होता है. वीज़ा वैलिड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं problem होती। नहीं आपको। और वीज़ा वगैरह रिन्यू करने के लिए आपको एम्बेसी जाना होता है, किस तरीके से वीज़ा रिन्यू होता है नहीं, आपका? so ये जो आपका वीज़ा तो लगा हुआ है अभी, जी। वैलिड है, तो फिर क्या होगा? मतलब वीज़ा रिन्यू कैसे होता है? एम्बेसी से होता है, किस तरीके से होता है? या सो आप जब अपना इटालियन स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपको मिलता है 1 year का वीज़ा. ठीक है, यहाँ पे आके यू नीड टू गेट द परमिट कार्ड. दैट इज परमिसो दी सोजोर्नो। परमेसो दी सोजोर्नो. ठीक है, वो और- कस्तूरा से मिलती है। वो कस्तूरा से मिलती है. वो आपने परमिट कार्ड जो है आपके आफ्टर योर वीज़ा, दैट इज गोइंग टू बी द वैलिड डॉक्यूमेंट. ओके You might have an expired visa on your passport, but that permesso di soggiorno is going to help you travel across Europe. It won't be a problem. ओके ओके। Yeah. सो आमना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वेरी प्रेशियस टाइम। आपने टाइम दिया, स्टूडेंट्स को गाइड किया। इफ़ द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गेट इन टच विद यू, Yeah. कैन दे कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन या व्हाट्सएप या फेसबुक, या कमेंट कर सकते हैं? I think comment on the video. सही है, कमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको कोई भी क्वेश्चन आए आमना से आप पूछना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन कमेंट बिलो। और इसके अलावा कोई भी चीज़ है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई कैन गेट इन टच विद आमना एंड आई कैन रिवर्ट बैक टू यू। सो आमना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। No problem. नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, एक और वीडियो बनाएंगे आपके साथ। Thank you. बाय बाय, चाओ चाओ।